You're watching Reality Check. Tonight, as the battle for Uttar Pradesh moves east, our focus is on this eastern Purvanchal region that abuts Bihar, stretching from Gorakhpur to Banaras, a region that has become a BJP bastion. All the more with the Prime Minister as the MP from Banaras. The BJP won all 7 seats in Banaras district last time. One key to the BJP's success was to break out of its traditional upper caste image by mobilizing smaller OBC castes in the east like Rajbhars, Patels, Kushwahas, Nishads and so on. By tying up with caste parties or giving greater share to these groups in their own candidates list. And number 2, the promise of Vikas to transform this desperately underdeveloped region. Today, though, as one travels through the region, questions over whether there are chinks in the BJP's armor, a result of both the discontent over economic distress, anger with the ruling party MLAs, as well as an aggressive attempt by Akhilesh Yadav to reach out to these same smaller OBC groups with his own set of alliances. We focus tonight on how 3 seats in Varanasi district that tell the story of how the BJP, while still in pole position, is battling the cracks in its bastion. और इसलिए कहना चाहता हूं, ये चुनाव पूरी तरीके से खुला हुआ है. Anil Rajbhar, minister in the Yogi government, sitting MLA and the party's candidate from Shivpur in Banaras. He belongs to the small but influential Rajbhar OBC caste, his presence an indicator of the BJP's inroads into these wider social groups. But today he is up against a tough challenger from his same caste, Arvind Rajbhar, the son of O.P. Rajbhar of the Suhail Dev party. O.P. Rajbhar, once with the NDA, has broken ties and crossed over to the Samajwadi party just before the elections, now contesting 19 seats, mainly in Purvanchal. ये कहा जा रहा है कि वाराणसी तो बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि ओपी राजभर जी के बेटे आपके सामने हैं, अब आपकी सीट अटकी हुई है. राजभर वर्सेस राजभर हो गया है. पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे और चुनाव के बाद हम फिर से आपसे बात करेंगे. अच्छा. पिछले बार का भी रिकॉर्ड टूटेगा. पिछले 2012 से देखें तो हमारी विधानसभा निरंतर अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ती हुई जा रही है. बट आप नर्वस नहीं है इस बार कि वो भी यहाँ आ गए हैं तो राजभर वोट बढ़ेगा? नहीं, मेरा तो बहुत आसान है. यहाँ का राजभर इतना नासमझ नहीं है कि ऐसे ही वोट दे दे. उसको वोट कहाँ करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए कभी वो यहाँ रहे नहीं. यहाँ से वो उधर भाग जाते हैं बलिया की तरफ. कौन? अरविंद राजभर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ओम प्रकाश जी की बात कर रहा हूं. ओम प्रकाश जो उनके फादर हैं, हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. अब उनका घर है बगल की विधानसभा में. पिछली लोकसभा के चुनाव में 2200 वोट उनके कैंडिडेट को मिला है ना. ये हमारी विधानसभा है, यहाँ 4000 के आसपास उनके कैंडिडेट को वोट मिला. So here we are with Arvind Rajbhar. He is the candidate for the SBSP alliance from this seat in Banaras district, and as you can see, he's wearing the colors of the alliance. The yellow color is of the SBSP, yes, and the लाल टोपी is of the SP. So this is to show the alliance is working. ये बताइए, लेकिन आपके खिलाफ अनिल राजभर हैं, मंत्री हैं, दिग्गज कैंडिडेट हैं, तो क्या आप मतलब सीरियसली आप मानते हैं कि आप उनको चुनौती दे रहे हैं, या कहा जा रहा है कि आप कास्ट फैक्टर की वजह से यही एक आपके पास कार्ड है, राजभर कार्ड? जनता उनको चुनौती दे रखी है, कैंडिडेट्स नहीं चुनौती दे रहे हैं, जनता ने दे रखा है. जनता अब जाग चुकी है. नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि आप जिस मतलब मुद्दे या प्लैंक पे लड़ रहे हैं, ज्यादातर बस कास्ट फैक्टर है कि जो राजभर समाज के वोट हैं वही आप उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई चुनौती नहीं दी जा रही है, इसीलिए आप यहाँ खड़े हैं अन्य राजभर के खिलाफ. देखिए, इसको कास्ट फैक्टर न कहा जाए क्योंकि यहाँ कोई फैक्टर बचा ही नहीं है. यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैक्टर है तो विकासवाद की. यहाँ राजभर वोट से कोई आप कह रहे हैं वो फैक्टर नहीं है? यहाँ कोई फैक्टर नहीं है. मैं बताया कि पूरे बनारस के शिवपुर विधानसभा में जाति भावना से ऊपर उठ करके यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव ऐसा चाहते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल में खेला हुआ था उस प्रकार से शिवपुर में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है. खेला हो भी कि नहीं जो, लेकिन अगर कास्ट फैक्टर नहीं है तो पिछली बार आप बलिया से इलेक्शन लड़े थे, तो इस बारी इस सीट क्यों? देखिए, बलिया हमारा गठबंधन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से था, वो सीट मेरे खाते में थी. इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमारा है और वहाँ बड़े नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी.
उन्होंने उस सीट का चयन किया, हमने उसका त्याग कर दिया। और इसलिए क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है, मेरी पढ़ाई लिखाई घुमाई पढ़ाई सब यहीं से हुआ है। राजनीति में मैं जेल गया तो यहीं से गया, राजनीति में मैं नीचे से उठ के यहाँ तक पहुंचा तो यहीं से। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ कास्ट फैक्टर नहीं है, सब एक साथ हैं, लेकिन जैसे आपके यहाँ सब समर्थक हैं तो सब समाज के लोग हैं यहाँ। यहाँ आपको सर्व समाज के लोग मिलेंगे। कौन बताइए। यहाँ आपको मिलेंगे अहिर गडेरी कुन्नी कोरी चर भर चमार मुसहर धोबी काटी पासी केवट बिंद मलाह तुरहा तुरहिया बिंद केवट मल्लाह पाल प्रजापति निषाद मौर्य कुशवाहा गुप्ता जायसवाल बनिया धुसिया जाटव चमार सब मिलेंगे आपको यहाँ पर। बताइए, नहीं बताएं कौन जैसे आपके सब हैं, कौन समाज के लोग हैं यहाँ? ये पाल समाज से हैं, ये पाल समाज ये यादव हैं, यादव समाज के। मैं सुनील पटेल पटेल समाज। मैं गुप्ता हूँ, गुप्ता तेली बनिया समाज। अब ये जायसवाल मैं यादव हूँ। आप यादव हैं। ये पटेल समाज से हैं, ये मुस्लिम समाज से हैं। सारो समाज अरविंद राजभर को चाहता है, पूरा समाज। In the villages of Shivpuri, conflicting views from BJP supporters. Some here, like this group from the Maurya OBC caste, say they are thinking of change. So we are in the Shivpuri seat and let's talk to some of the people here. साहब आप अपना नाम बताएं। विजय मौर्य। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। आप भी यहीं इसी गांव के ही हैं? बहुत सत्संगी है वो। आप भी इसी गांव के हैं? तो चुनाव में जैसे पिछली बार अगर देखें तो यहाँ पे ज्यादा किसका था? भाजपा जी यहाँ से भाजपा था। भाजपा इस बार पिछली बार आपने खुद भी भाजपा को ही दिया था। आप भी भाजपा, यहाँ आप भी भाजपा ही। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना गा रहे हैं अपना बिजनेस अपना भजाने के चक्कर में सब पड़े हैं। बिजनेस लगा अरे 10 करोड़ लगाएंगे 50 करोड़ कमाएंगे। हर इलेक्शन के बाद तो इनका इतना बढ़ गया इतना प्रॉपर्टी बढ़ गई। किनका बढ़ गया? अच्छा, अरे कैंडिडेट लोग का या MP MLA विधायक संसद लोग का, ये तो बिजनेस कर दिए हैं, तो देश सेवा थोड़ा है। तो इसका मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि भाजपा इस बार जीतेगी, या जनता का रुझान तो नहीं है, उससे भाई मालिक जाने। रुझान नहीं है जनता का? तो जो मंत्री जी हैं यहाँ जीते हैं, कुछ काम किए यहाँ के लिए? कुछ नहीं, 2 ठे सड़क बिगड़ा, आज तक काम ही नहीं किया। तो आप कुछ सोचे हैं किस तरफ डालेंगे? नोटा दबाएंगे नोटा दबाएंगे। इतने नाराज हैं आप कि नोटा दबाएंगे हैं? आपका नाम? राम अवतार मौर्य। आप भी मौर्य? तो यहाँ पे मौर्य समाज जो है, गाँव ही है, ये पूरा गांव मौर्य है। आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? जी। पिछली बार आप भाजपा को दिए थे? जी, हम ही नहीं, हम लोग के पूरा गांव हम लोग भाजपा ही थे। अच्छा। लेकिन क्या है कि 10 सालों से ना तो महेंद्र नाथ पांडे जी ने कुछ किया, ना तो अनिल राजभर ने कुछ किया। इसलिए हमारे गांव से इस बार वोट हमको लगता है कि 500 भी वोट अगर भाजपा पा जाएगी तो बहुत भाग्य होगा। अच्छा। हाँ, 5000 वोट में। आपने खुद सोचा है कि आप किसको वोट करेंगे? हम लोग इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो किसको देंगे, कुछ सोचा है? किसी को भी दे दिया जाएगा। अच्छा, किसी को भी दे दिया जाएगा? हाँ, लेकिन अनिल राजभर को नहीं दिया जाएगा। भाजपा को नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक भी कार्य आप बताइए, हम चाहेंगे आप 1 मिनट की कैमरा आप हमारे पोखरा पे भी घुमा दीजिए, पूरा पोखरा भरा है। अच्छा, सीवर की यहाँ समस्या है, सबसे बड़ी बात सीवर। दूसरा, रोड हमारे गांव की रोड भी बहुत खराब है। हम लोग आज से नहीं, हमारे पिताजी और हमारे चाचा लोग भी, हम लोग भाजपा ही हैं। हमारे बगल में आनंद रत्न मौर्य पूर्व सांसद हैं भाजपा से, तो हम लोग भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। लेकिन क्यों हम लोग वोट दें बताइए? जब काम नहीं हुआ, जब काम ही नहीं हुआ है तो हम लोग क्यों वोट दें? नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। These men, though from the Rajput upper caste community, are happy with the BJP. तो आपका शुभ नाम? राम सेवक सिंह। राम सेवक सिंह जी। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी। हाँ, बरियासनपुर घर है। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि इस वक्त चुनाव का मतलब माहौल चल रहा है, पिछली बार इस गांव में वोट किस तरफ गया था? क्या भाजपा की तरफ गया या सपा की तरफ? भाजपा जीता है। भाजपा पूरा भाजपा? हाँ, भाजपा जीता, भाजपा जीतेगा। आप भी दिए भाजपा को? यस। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि क्या अभी इस बार भी भाजपा आगे है या लोग नाराज हैं? क्या लग रहा है? नाराजगी की बात सबके पास रहता है, कुछ सब लोग खुश नहीं होंगे। लेकिन काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। क्या विकास का काम हो रहा है? क्या अच्छा काम हो रहा है आपके? चारों तरफ जो है रोड बन रही है, लाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 4 महीना से राशन दे रही है गवर्नमेंट हमारे छोटे जाति को। अच्छा है, खराब है? बिना पैसे में बांट रही है। कहाँ से?
But some youngsters we meet, also BJP supporters, are angry at the absence of opportunities. तो भैया क्या इस बार चुनाव आप वोट करेंगे? आपका वोट है? आप थोड़े यंग हैं? हाँ, वोट है। तो क्या आपकी राय है? क्या आप पिछली बार किया था आपने? किया था। पिछली बार किसको किया था यहाँ? अब बताना जरूरी तो है नहीं। बताना जरूरी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। हालांकि यहाँ भाजपा जीती थी, तो पता नहीं आपने किसको किया, वो मैं आपको नहीं सुनिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ इस बार बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ काम हुआ यहाँ? नहीं, काम अगर हुआ होता तो जितने युवा हैं इतना खफा नहीं होते। युवा भाजपा से बहुत ही ज्यादा खफा है। किस वजह से? काम नहीं हुआ है, पहले तो बेरोजगारी है, उसके बाद लड़के पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये सबको लेकर। उसके बाद जो रास्ता बना रहे हैं, इधर एक रास्ता है, एक इधर रास्ता है, वो रास्ता गिट्टी गिरा, गिट्टी उठा गया, ये क्या मतलब हुआ? तो यहाँ बेरोजगारी वो बोल रहे हैं कि हमारे मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, तो ये मतलब नहीं होता है कि मुर्दाबाद का नारा लगाया गया तो आप खफा होगी, जनता को कोई ने काम नहीं करेंगे। आपको सत्ता में किस लिए लाया गया? इसलिए लाया गया है ना। कुछ तो हैं आपके एंटी पार्टी लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको लेकर ही पर्सनली बोल दें कि मुर्दाबाद का नारा लगाया गया तो हम कुछ कर नहीं। हालांकि वो मंत्री जी रह चुके हैं यहाँ, आप कह रहे हैं विकास और यहाँ बेरोजगारी, खासकर आप युवा हैं, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ। हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं ना, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं अभी। अच्छा, इससे पहले वो क्या बोलते हैं 97,000 टीचरों की वैकेंसी को निकाला गया था कि टीचर 97,000 बाकी है, वो केवल लॉलीपॉप थमा दिए कि 17,000 लीजिए, आप लोग खुश होइए, फिर आगे आप हमको सत्ता में लाएंगे तो आपको फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। ये कोई मतलब नहीं होता ये सब। अच्छा, और आप मतलब पिछली बार क्या आप भी बीजेपी को दिए थे या नहीं, हम बीजेपी को वोट नहीं देते पिछली बार। नहीं, और इस बार तो और नहीं वोट दिए थे, लेकिन इस बार हम देने नहीं देंगे। नहीं देना। तो कुछ सोचा है किस तरफ देंगे वोट इस बार? सर हम लोग का देखिए अब राय के ऊपर है, जिसको देंगे अब अपना। हाँ, वो तो इस बार बीजेपी को हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि काम के देखते हुए नहीं और फिर बेरोजगारी को देखते हुए, जो ये सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके देखते हुए इस बार हम लोग बीजेपी को नहीं देख रहे हैं। Sevapuri, Banaras district. In 2017, this seat was won by the BJP's ally Anupriya Patel's Apna Dal, which represents the Patel Kurmi OBC community. The win of the alliance getting a substantial share of the Kurmi vote as well as support from the BJP's core base, like this family of upper caste Bhumihar men that we meet in their ancestral home. हमारा नाम बीरेन्द्र प्रताप सिंह। बीरेन्द्र प्रताप सिंह, आपका नाम? कविंद्र नारायण सिंह। मेरा नाम अंकुर सिंह। रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो आप सब जैसे भूमिहार जी सब कहलाते हैं, और आप बता रहे थे आप कट्टर भाजपा के 99% लोग 99% लोग पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा भूमिहार हैं। उसमें 99% अगर सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत देखा जाए तो भूमिहारों का ही बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और आप क्या करते हैं? मतलब हम तो कृषि यहाँ खेती में ज्यादातर कृषि करते हैं। हाँ, फार्मिंग। This time though, the Apna Dal MLA Neel Ratan Singh Patel has been fielded on a BJP ticket. And in the neighbouring seat of Rohania, an upper caste BJP MLA has been replaced by a Patel candidate from the Apna Dal. The result is anger. अच्छा, तो आप बतला रहे थे कि इस बार क्या नाराजगी है? अब नाराजगी तो देखिए शुरुआत से शुरू हो गया है। पहले मोदी जी को हम लोग जानते थे कि गरीब परिवार से आए हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल की तरह चलेंगे। तो जब इतने गरीब परिवार से आकर के इतनी नफासत की, सारा निजाम हैदराबाद के परिवार का भी व्यक्ति ऐसा शान शौकत से नहीं रहता होगा जिस ढंग से वो रहना शुरू किए। पहले तो वहीं से जुड़ाव आ गया। इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में खासकर जैसे ये सीट है, आप लोगों का यहाँ काफी, आपकी संख्या काफी है, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? जी, यहाँ पे दिक्कत यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भूमिहारों को 7 सीट दिया था। इसके पहले जो 2017 की चुनाव हुई थी 7 फिर ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट था, ठीक है। लेकिन इस बार के चुनाव में बनारस में 2 था भूमिहारों को, तो उसको काट के 1 कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश में टिकट काट के 5 कर दिया। मतलब 7 से और 9 होना चाहिए, वो 5 हो गया। पहली नाराजगी ये हो गई। दूसरी की नाराजगी ये हो गई कि सेवापुरी विधानसभा में जिसे भाजपा का प्रत्याशी बनाए हैं, भाजपा के एक भी कार्यकर्ता नेता जानते भी नहीं है कि वो भाजपा का नेता है। वो अपना दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका पैर दोनों बिकला, अपना दल ने टिकट नहीं दिया, तो इसको भाजपा ने बुला के क्यों टिकट दिया? These voices reflect the challenge before the BJP. As it widens its social base, it risks angering its core upper caste backers. को प्रत्याशी से प्रॉब्लम है, लेकिन आपने अभी भी ये भी कहा कि भूमिहारों का टिकट काटने से भी नाराजगी है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, भूमिहारों का जो टिकट है वो दूसरी जगह है। अभी जो हमारी बात हो रही है विकास पे हो रही है। हमारा मतलब ये है कि इनको किस बिहाफ पे टिकट दिया गया। अगर इनसे अच्छा हम करते हैं कि ठीक है एक भूमिहार ही था तो भूमिहार को दिया गया होता,
क्या भूमिहार काम नहीं कर सकता था? क्या जो अभी वो नहीं चल पा रहा है, आप सोचिए वो कैसे जाएगा किसी खेत में, किसी में कहीं पे, कैसे वो वहां जाएगा? व्हील चेयर से जाएगा खेतों में, तो वो जाके कैसे चेक करें? समझ गया। तो आप कह रहे हो एक तो ओवरऑल टिकट काटा गया भूमिहारों का, दूसरा यहाँ पे जो पटेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे ही पटेल नहीं, अभी आप अपने रोहनिया में भी देखिए, सेवापुरी में भी देखिए, दोनों की लड़ाई इतनी तगड़ी थी कि भाजपा को अपना दल के आगे झुकना पड़ा, और अपना दल के आगे झुक करके उनको नतमस्तक करके जिसको अपना दल ने कहा उसको टिकट दिया गया। ये हमारा अपना परसेप्शन है, हम किसी और का नहीं जानते। So who will these men vote for? तो आप किसका सोच रहे हैं फिर? अगर आप भाजपा से नाराज हैं, किसको सपा को विकल्प के रूप में? हम सपा को पसंद नहीं करते, हम फिलहाल विकल्प दे रहे हैं कि इनसे भीड़ छूटे, हाथ जोड़े इनको हम। अच्छा, आप सपा को देने को तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, इसलिए कि वहाँ कम से कम हर आदमी की सुनवाई होती है। आप लेकिन इसमें आप भी सपा को देंगे या विकल्प के रूप में रखा गया है? विकल्प के रूप में रखा गया है सपा को। हाँ, हम लोग 6 तारीख को फैसला लेंगे जो है। हम लोग एक पक्का समर्थक भाजपा के थे, लेकिन इस बार हम लोग उहापोह की स्थिति में हैं। बहुत इस तरीके से इन्होंने जलील किया है भूमिहारों को, इस तरीके से इनका टिकट काट के कि भूमिहारों का टिकट कटना, और वो भी ऐसी जगह से कटना जहां पे भूमिहार ही निर्णायक होता है, ऐसी जगह पे भूमिहारों को पीछे ढकेल करके किसी और को ले आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये हम लोगों के लिए शर्मनाक बात हुई है। इसलिए हम लोग बहुत इस समय उहापोह की स्थिति में है। इस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, आपस में निर्णय लेंगे, उसके बाद ही अभी जा सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बटे हुए हैं लोग, मतलब हम देख रहे हैं खुद यहाँ पे कुछ आप ही के बिरादरी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा से खफा हैं, और कुछ लोग यहाँ हैं जो कह रहे हैं खुश हैं। तो ये है खिन्नता है बस, और कुछ अभी तक 100% हम लोग एक साथ थे, 100% थे। जहां एक ही नारा जय श्री राम का नारा लग रहा था, आज इसी 10 आदमी में ही हम लोग बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बातें एक नहीं हो रही है। इसके और सुनिए, इसके और सुनिए, इसके पहले क्या था? इसके पहले के चुनाव में क्या था? इसके पहले में एक नारा होती थी, एक गूंज होता था जय श्री राम। तो इससे हम सीधे, हमको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपना वोट खो रही है। The dispute has divided the household. जैसा कि बड़े पापा बता रहे थे हमारे कि भूमिहारों को इस पार्टी में मतलब ध्यान नहीं दिया गया, उनको एकदम पीछे ढकेल दिया गया, और बड़े पापा सपा लाने के लिए बोल रहे हैं। सपा लाएंगे, फिर से हर पद पे, ऊंचे पद पे यादव बिरादरी बैठेगी, तो कहाँ पे विकास होगा भूमिहारों का? तो यहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं, सोचा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है चुनाव के बारे में? सोचना क्या है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। अच्छा, महिलाएं सारी बीजेपी है इधर। बीजेपी। अच्छा, हाँ। और हमको बाहरी का पता नहीं, लेकिन अभी बीजेपी हम लोग हैं। अच्छा, क्यों? अच्छा है, हमको मोदी का सपोर्ट, हमको सब कुछ दिखाई देता है, रोड भी अच्छी दिखाई देती है, और हम लोग को पहले से फैसिलिटी भी अच्छी मिली है। अच्छा, और राशन भी आ रहा है, जो भी हमको मिलता नहीं था वो भी मिल रहा है। फिर बिजली का, जैसे बिजली का भी हम सही बातें करें, वो सही बोल रहे हैं, बिजली का बिल का भी हमको लोग मिल रहा है, सिलेंडर मिल रही है टाइम से। महंगी होगी तो भाई बनवा भी तो रहे हैं, कर भी तो रहे हैं। बीजेपी हाँ, आप बीजेपी और बीजेपी। लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं जिनसे हम बाहर मिले थे, तो उनमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि वो थोड़े शायद नाराज है इस बारी। तो वो गलत चीज देख रहे हैं ना, मतलब कि वो अच्छी चीज नहीं देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, लेकिन क्या चीज लाया गया हमारे यहाँ वो नहीं दिख रहे हैं। Pindra, Banaras district. The sitting MLA, the BJP's Avdesh Singh. Amongst those who voted for him, many in this village of Varma or Kurmi OBCs. But now they say they're angry. तो यहाँ पिछली बार किसको वोट पड़े थे? भाजपा को। भाजपा को। आप सब भाजपा को ही दिए थे? अगली बार तो दिए थे, लेकिन इस बार तो नहीं दे सकते हैं, कुछ चेंजेस है। अच्छा, पिछली बार दिए थे, लेकिन पिछली बार दिए थे तो क्योंकि यहाँ जीते भी भाजपा से ही हैं। हाँ, जीते भी थे। तो क्या चेंजेस हैं? चेंजेस तो उतना कुछ नहीं है, पहले से चेंजेस है नहीं। पहला बात तो विधायक जी जो है यहाँ के, वो पहली बार तो आते नहीं गांव में, वो आते हैं तो कई महीनों के बाद आते हैं, और वो बोलते हैं लेकिन उतना काम करते नहीं। काम नहीं करते हैं? क्या काम नहीं किए? काम मतलब कि जो करना चाहिए किसानों के लिए उतना नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, आपको, आप क्या मानते हैं? आप भी चेंज चाहते हैं? हाँ, या चेंज ही। चेंज क्यों? वैसा गांव में काम ही नहीं हुआ है, जैसे कि इसे सोलिंग, ये सब हैंडपंप, ये सब सुविधा चाहिए हम लोग को। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसानी की? हाँ। क्या खेती? यही गेहूं चावल। गेहूं चावल की। आपने भी पिछले बार भाजपा को ही दिया था? भाजपा को ही।
अच्छा आप क्या करते हैं? आप भी नहीं, हम पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? बीए कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं को जो कि रोजगार मिले, ये मोदी जो ये नहीं दे रहे हैं, यही कमी है इनकी। विशेष तौर पर महंगाई इतनी बढ़ाई जा रही है, उसे कम नहीं कर रहे हैं। बस वो बिजली और सड़क और एलपीजी गैस यही सब दे रहे हैं। जो इसकी महंगाई पहले तो सब्सिडी कट के मिल रहा था, लेकिन अब सब्सिडी नहीं मिल रहा है। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, हम लोग दब जा रहे हैं। इसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत है। किसकी सब्सिडी? गैस की? हाँ, पहले मिला था तो अब फिर बढ़ा करके महंगाई इसको वसूल ली है। मोदी जी का यह है, हम यही चाह रहे हैं कि विशेषकर महंगाई को कम किया जाए। मोदी जी से मेरा यही आग्रह है। आग्रह तो है, लेकिन अभी तो चुनाव में आपको तय करना पड़ेगा। हाँ, तो मोदी जी तो आप किसको देंगे? आप दिए थे पिछली बार वो? हाँ, उन्हीं को दिए थे, बीजेपी को। हाँ, और इस बार भी भाई तो भाई कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा में है। अखिलेश जी देखिए कौन जीतता है। A former village pradhan, also a BJP supporter, says she may vote for the Congress candidate, a local strongman called Ajay Rai. आप इसी गांव के यहीं रहते हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा, क्या गांव है ये? जमापुर। आपका शुभ नाम? अमरनाथ पटेल। आपका नाम? संगीता पटेल। अच्छा, तो आप क्या खेती करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ। खेती किस चीज की? यह गेहूँ बा, धान बा, ऊख बा, गन्ना बा, सही गेहूँ वगैरह। तो जो चुनाव का इस वक्त माहौल है, पिछली बार चुनाव यहाँ हुआ था, हाँ। तो किस तरह वोट गया था यहाँ? आप किसको, मतलब योगी जी दिए थे या? नहीं, सरकार भाजपा का रहा। सरकार भाजपा का रहा। ठीक है, सब भाजपा को ही दिया। सब भाजपा को दिए यहाँ पे। और इस बार खुद भी भाजपा को। इस बार क्या सोचे हैं? अभी तो नहीं सोचा हूँ। अभी समय है, पूरा गांव देखे कैसा होता है। बहन जी क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोचे भैया, गैस तो इतना बढ़ा दिए। हम लोग गृहिणी है, इतना रसोई पे खर्च पड़ रहा है कि एकदम परेशान हो जा रहे हैं। गैस का दाम इतना बढ़ा है, पेट्रोल डीजल बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। बताइए, 2000 रुपए तो योगी मोदी वहाँ से दे देते हैं, हम लोग को लाभ मिल जाता है। किसान का जो मिलता है, किसान का। और फिर बीच में जो आता है वो हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीच में मतलब? बीच में कोई लाभ है, जैसे कोई योजना है तो हम लोग तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। अजय राय गरीबों को मसीहा है। रात बिरात कोई इमरजेंसी हुई तो कांग्रेस के जो अजय राय हैं, आप उनको दे रहे हैं। अजय राय इज द कांग्रेस कैंडिडेट हियर। क्योंकि स्ट्रांग लीडर ऑफ द कांग्रेस इन बनारस रीजन। प्राइवेट जो है उनका व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार जो है कैंडिडेट के आधार पे आप दे रहे हैं? कैंडिडेट के पार्टी लेवल के हिसाब से। पार्टी लेवल के आप हिसाब से नहीं दे रहे हैं। But further along the village, there is support for the BJP. हम लोग तो भाजपाई हैं। भाजपाई हैं, पहले भी थे, इस बार भी देंगे। क्यों? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे क्या विकास हुआ है? अरे सड़क बना है, 11 करोड़ में रोड बना है, सड़क बना है, राशन भी मिल रहा है। राशन मिल रहा है? सबको मिल रहा है। क्या राशन मिला? सब चीज मिला, नमक से लेके तेल, दाल, सब चीज, चना, चावल, गेहूँ, सब चीज मिला। और महंगाई, जैसे अभी हम आगे बात कर रहे थे तो कह रहे थे महंगाई की बहुत मार है यहाँ, है? अब भाई जो फ्री मिलेगा तो महंगाई थोड़ा बहुत रहेगा ही। यहीं इसी गांव के हैं? जी। आपका नाम? भाई राम राजभर। भाई राम राजभर जी। अच्छा, तो आप क्या खेती करते हैं? क्या करते हैं? खेती तो है नहीं, अधिया खुदिया खेती करते हैं बस। खुद का खेत नहीं है। जमीन नहीं है? जमीन नहीं है। पिछली बार क्या हुआ यहाँ पे? आपने सब क्या किसको दिया? भाजपा को दिया। आपकी बार भी सबकी वही बात है। सब भाजपा की बात हो रही है? भाजपा ही है। क्या वजह है उसकी? क्या, क्यों भाजपा को क्यों देने के बाद? किसको दिया जाए आप ही लोग बताइए ना। अभी तो पूरे गांव का जो माहौल, जो मूड बन चुका है, वही लोग तो हम लोग भी हैं भाई। जैसे गांव जहाँ जाएगा तो वहाँ हम लोग जीवे करेंगे। क्या अच्छा क्या लगा लोगों को भाजपा में? क्या हुआ? भाजपा में लग गया कि पहली बात तो सपा में बिजली की परेशानी, बिजली घंटा 2 घंटा मिलता, सब कंपनी में सप्लाई होती थी। और दूसरी बात यह है, जाके देखिए बनारस में क्या छवि मचा दी है मोदी जी। बनारस की छवि, हर रोड देखिए, छोटा से बड़ा रोड भी कर दिए। और गरीबों के लिए कितना जो है कि उपकार कर रहे हो। 500 से 1000 रुपया पेंशन भी कर दिए हो। और जमीन बदे के जो है कि 6000 रुपया महीना हर किसानों को मिल रहा है। तो क्या दिक्कत भाई साहब, किस सरकार हम लोग को नहीं मिला? और राशन भी मिल रहा है? राशन भी दे रहे हैं। क्या मिलता है राशन में? राशन में मिलता है गेहूँ चावल मिलता है, चने का दाल मिलता है, जो है कि तेल मिलता है, और जो है कि नमक मिलता है। Now, none of this is to suggest a significant loss for the BJP. As we heard, there are still many voices of support.
Also, even amongst angry BJP voters, there is a lack of clarity on who to vote for. And finally, these reports were filmed before the Prime Minister arrives in Banaras, as he's expected to. Something that many believe could win back the angry faithful.